Hello, myself Dr. Neeraj Tiwari, Associate Professor and Head, Department of Physics, Lajpat Rai College, Sahibabad, Ghaziabad. In this lecture today, we will try to get an introduction of thermodynamics, its subject matter, its scope, and approach to its study. आज के इस व्याख्यान में हम ऊष्मागतिकी का एक परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है और इसका एक्सटेंट क्या है, किन विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं को इसके मदद से हम जान सकते हैं और इसकी पद्धति किस तरीके से हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं. नाउ इफ वी look at the word thermodynamics, it consists of thermo and dynamics. Thermo is related to heat and dynamics is related to motion. In a sense, it means heat motion. And if we think a bit more, we may say it is related to flow of heat, because the motion of heat can be in form of flow of heat. तो अगर हम ऊष्मा गतिकी शब्द को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ऊष्मा और गति, यानी हीट और मोशन. और इसको हम कह सकते हैं कि ऊष्मा के प्रवाह और इसके प्रभाव का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं. Thermodynamics started in 19th century and a response to the study and practical application of steam engines in the beginning. ऊष्मागतिकी की जो शुरुआत हुई वो एक तरीके से जो भाप के इंजन थे उनके की कार्य करने के तरीके, उनकी स्टडी और उनके व्यावहारिक प्रयोग से हुई थी 19वीं शताब्दी में. In this way, we may see that thermodynamics started as a response to study the role of heat in production of mechanical effort or mechanical energy. In fact, in the beginning, the thermodynamics related heat and mechanical energy. Its subject matter was heat and mechanical energy and its interconversion. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ऊष्मा द्वारा यांत्रिक कार्य को उत्पन्न करने के प्रयास से ही ऊष्मागतिकी का प्रारंभ हुआ कि ऊष्मा और इसके द्वारा जो हम कार्य उत्पन्न कर सकते हैं, इंजन्स को चला सकते हैं, उसके अध्ययन के लिए ऊष्मागतिकी की शुरुआत हुई. However, over a period of time, the subject matter of thermodynamics includes heat, or we may even say energy, and its relation with other different forms of energy. लेकिन कालांतर में जो इसकी विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक हो गई और इसमें ऊष्मा या अन्य प्रकार की ऊर्जा और उनका अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के साथ संबंध जो है उसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के अंदर करते हैं. दिस इज ऑल्सो नेचुरल बिकॉज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और एक सामान्य बात है क्योंकि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे में आसानी से परिवर्तित की जा सकती है या होती है.
और जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहता है कि ऊर्जा जो है वह ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। हाँ, उसके रूप परिवर्तित हो सकते हैं। our first law of our law of energy conservation say that energy can neither be created nor destroyed, but its form can be transformed. And in fact, this is also the first law of thermodynamics, which we will see later. और यही जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी है, और या हम कह सकते हैं कि हम इसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के रूप में भी रखते हैं, और इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। In thermodynamics, we study the effects of work, heat, energy on a system, and we study macroscopic systems, or we study the large scale structure of a system. तो ऊष्मागतिकी में हम कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा के किसी निकाय पे प्रभाव को स्टडी करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, पर ऊष्मागति में हम बड़े सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, मैक्रो सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। वी स्टडी लार्ज सिस्टम्स, वी डू नॉट स्टडी माइक्रो सिस्टम्स। माइक्रो हेयर मीन्स वेरी स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। We may distinguish it in a way that we may study some process in a star, or deriving of mechanical effort by steam or by diesel engine or by petrol engine, or we may study melting of a certain amount of ice, say 1 kilogram, few grams, or even milligrams or less than milligrams. These are all we may all these things we may classify in macro systems. We do not study how molecules interact, atoms interplay, or how nanoparticles behave under thermodynamics. We may study a large ensemble of these particles, but not few particles or individual particles. तो ऊष्मागतिकी में हम बड़े निकायों की अध्ययन या बड़े निकायों का अध्ययन करते हैं। ये बड़े निकाय क्या हो सकते हैं? एक स्टार हो सकता है, एक तारा हो सकता है, उसके अंदर होने वाली प्रक्रिया हो सकती है, भाप से चलने वाला इंजन हो सकता है, डीजल या पेट्रोल से चलने वाला इंजन हो सकता है। इसमें हम पानी के भाप में बदलने को अध्ययन कर सकते हैं, बर्फ के पिघलने का अध्ययन कर सकते हैं। वह बर्फ 1 किलो हो सकती है, 50 ग्राम हो सकती है, कुछ मिलीग्राम हो सकती है, या मिलीग्राम से भी कम हो सकती है। और इसके अंदर वी मे ऑल्सो स्टडी वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। हम इसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। व्हाट वी डू नॉट स्टडी इज, वी डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और एटम्स और few nanoparticles or a collection of few of these, but we may still study a large ensemble of these particles where millions or more of these particles work as a system. Now, when we talk about system, we should try to understand what a system is in terms of thermodynamics. तो जो हम निकाय या सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम इस निकाय से हमारा क्या तात्पर्य है। अ सिस्टम इज अवर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी which has a structure and a boundary and an environment, and it may have some function also. तो हमारा जो निकाय है, जो सिस्टम है, वो क्या है?
वो एक ऐसी वस्तु है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका एक की अपनी एक संरचना है, इसकी अपनी एक बाउंड्री है और इसके बाहर एक वातावरण है या इसका एक पर्यावरण है और इसके कुछ कार्य हो सकते हैं, इसके कुछ फंक्शंस। दिस इज अ सिस्टम। नाउ इन ए ब्रॉड sense, these systems may be of three types: open systems, closed systems, and isolated systems. Open systems are those which may exchange energy as well as matter with the surroundings or the environment. Closed systems are those which may exchange energy but not matter. And isolated systems are those which can neither exchange energy नॉर एक्सचेंज मैटर विद द एनवायरमेंट। तो यह निकाय तीन प्रकार के हो सकते हैं। खुले निकाय जो कि अपने वातावरण से ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बंद निकाय जो ऊर्जा का आदान प्रदान तो कर सकते हैं लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकते। और तीसरे आइसोलेटेड निकाय या एकाकी निकाय जो कि ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान कर सकते। नाउ टू स्टडी अ सिस्टम वी नीड सम फिजिकल क्वांटिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग वी नीड सम प्रॉपर्टी on the basis of which we can say something about someone or some event. For example, if an institution, a college want to know something about a student or characterize a student, he needs some information like the class in which he studies or she studies, what was his or her performance in the last class, whether he or she is tall or short, fair or dark, और such things. अब किसी भी निकाय को या कोई भी अध्ययन करने के लिए हमें कुछ भौतिक गुणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी छात्र या छात्रा के बारे में कोई संस्थान जानना चाहता है या बताना चाहता है तो उसे कुछ सूचनाएं चाहिए। वह किस रूप में हो सकती है, जैसे कि फला छात्र या छात्रा किस कक्षा का विद्यार्थी है या पिछली कक्षा में उसका क्या परफॉर्मेंस था, वह लंबा है या लंबी है या छोटा है या छोटी है, उसका रंग कैसा है, इत्यादि इत्यादि। एंड व्हेन वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स वी नीड सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसी प्रकार जब हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं तो भी हमें कुछ ऊष्मागतिकी चर राशियों की आवश्यकता होती है। द वेरिएबल्स we use to study thermodynamics are called thermodynamic variables. वे चर राशियां जिनकी मदद से हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं या किसी प्रक्रिया का ऊष्मागतिकी के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उन्हें हम ऊष्मागतिक चर राशियां थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। These are also called thermodynamic coordinates. Generally, these thermodynamic variables or thermodynamic coordinates are of two types: intensive and extensive. इन्हें हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं और ये ऊष्मागतिक चर राशियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। इंटेंसिव
variables are those which do not depend upon the amount, or in simpler terms, we may say on mass. For example, pressure or temperature, etc. Extensive variables are those which depend upon the amount, like volume and internal energy and say entropy, etc. तो जो आंतरिक चर राशियां हैं वो हैं, उदाहरण के तौर पर तापमान, दाब इत्यादि। ये जो हैं पदार्थ के अमाउंट या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। और बाह्य चर राशियां हैं जैसे आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी इत्यादि। ये जो बाह्य चर राशियां हैं ये पदार्थ के अमाउंट या मास पर निर्भर करती। Now there are certain laws of thermodynamics around which the study of thermodynamics revolves is or is based on the law. तो कुछ ऊष्मागतिक नियम हैं जिन पे ऊष्मागतिकी की अध्ययन जो है आधारित है, और इसमें जो सबसे सिंपल नियम आता है वह है ऊष्मागति का शून्याकी नियम या शून्य नियम ऊष्मागति। द फर्स्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लॉ is the zeroth law of thermodynamics. It is called zeroth law because it was given in a form of law after the first law, but as it was very elementary, it was called zeroth law of thermodynamics. इसको हम शून्य नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रथम नियम के बाद दिया गया था, लेकिन एक बहुत ही एलिमेंट्री नियम है, इसलिए इसको शून्य नियम नाम दिया गया। और यह हमें एक प्रकार से तापमान के विषय में भी बताता है, तापमान की एक समझ देता है मैक्रोस्कोपिक नजरिए से। दिस लॉ गिव्स अस एन आइडिया अबाउट टेम्परेचर फ्रॉम अ मैक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग or a macroscopic viewpoint. Now, what is this law? Now, to discuss the zeroth law, before discussing the zeroth law of thermodynamics, we should have some idea of thermal equilibrium. तो इससे पूर्व कि हम शून्य नियम की बात करें, हमें थोड़ा सा ऊष्मीय इक्विलिब्रियम या ऊष्मीय संतुलन के बारे में जानना आवश्यक। एंड thermal equilibrium is related to the flow of heat. Suppose we have a system and it is in such an equilibrium that no flow of heat is taking place between its different part. We may say that system is in thermal equilibrium. यानी कि माना कि हमारे पास कोई निकाय है और उस निकाय के विभिन्न हिस्सों के बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह ऊष्मीय संतुलन में है। Now the zeroth law is formulated in such a way, in this way, suppose we have, for example, three systems A, B and C. माना कि हमारे पास तीन निकाय हैं A, B, C, and individually A is in thermal equilibrium with C and B is also in thermal equilibrium with C. यानी A और C ऊष्मीय संतुलन में है, B और C भी ऊष्मीय संतुलन में है, यानी A और C के बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है,
और बी और सी के बीच में भी कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इन सच अ इन दिस केस इन सच अ केस इफ ए एंड बी आर ब्रॉट टुगेदर देन ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस परिस्थिति में अगर ए और बी को साथ ले आते हैं तो ए और बी भी थर ऊष्मीय संतुलन में होंगे। This means that if two systems are in thermal equilibrium with a third system, they will also be in thermal equilibrium with each other. यानी यदि दो निकाय एक किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो वो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। What we get from this understanding of this law, this zeroth law, is that it implies that, or it means that the systems which are in thermal equilibrium with each other must be having some characteristic common to both of these, and that this characteristic is the temperature of the system. इसका मतलब है कि ये जो ऊष्मीय संतुलन में दो निकाय हैं या तीन निकाय हैं आपस में, उनमें कोई ऐसा गुण होगा जो कि समान होगा, और यह गुण हमें क्या बताता है? यह गुण हमें तापमान बताता है। In this way, zeroth law of thermodynamics forms a basis of large scale definition of temperature. It gives us the concept of temperature. इस प्रकार जो शून्य नियम है ऊष्मागतिकी का, वह हमें लार्ज स्केल पर तापमान की अवधारणा से अवगत कराता है। एक प्रकार से तापमान की संकल्पना को देता है। Now we again come to thermodynamic variables and equilibrium. It is important to note that these thermodynamic variables should be point functions and these should be generally continuous also. तो यह जो ऊष्मागतिक चर राशियां हैं, यह बिंदु फलन भी होनी चाहिए और सामान्यतः यह कंटिन्यूस भी होनी चाहिए, जिससे कि हम इनका उपयोग अपनी समस्याओं के निदान में कर सकें। Now we have just discussed about thermodynamic, thermal equilibrium. Now we come to thermodynamic equilibrium. अभी हमने ऊष्मीय संतुलन के बारे में बात की और उससे zeroth लॉ के विषय में बात की। अब हम इससे आगे चलकर ऊष्मागतिक संतुलन के विषय में बात करते हैं। Now thermodynamic equilibrium involves equilibrium of various type of processes taking place in the system. For example, and generally, thermodynamic equilibrium involves mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. जो ऊष्मागतिक संतुलन है वह उदाहरण के तौर पर और सामान्यतः इन्वॉल्व करता है या उसमें किस किस तरह का संतुलन होना आवश्यक है, वह है यांत्रिक संतुलन, ऊष्मीय संतुलन और रासायनिक संतुलन। For a system to be in mechanical equilibrium, there should be no unbalanced forces existing between different parts of the system. अब यांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक है कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेज यानी अनबैलेंस्ड बल निकाय में ना हो। For thermal equilibrium,